Good evening, everyone, and warm greetings to all. I, Shruti Sangai, the NSS volunteer of Saraswati College of Engineering, welcome you all to this event. It is a great pleasure to be here today to this seminar, which is going to provide a valuable insight regarding mental illness and highlight the positive steps that can be taken to promote mental health and well-being. Be it autism and intellectual disability in childhood, adult conditions such as depression, anxiety, or dementia in old age, the world is facing a challenge in form of mental illness. Discussion like this are very important in today's life for understanding the fact that mental health issues affect people from all walks of life. This can be seen in the news headline. So I would request Mansi to give us information about the recent news headlines. Mansi, over to you. As we can see in the PPT, many of the cases have been registered during this COVID period in 2020. There are some of the articles which we have gathered. In this, the main because of which mental health was, you can say, everyone got attracted to it, or everyone started to research on this was when Sushant Singh Rajput died, because many of them came to a conclusion that he was in depression. So because of that, everyone started to research what is this, what is depression. Okay, many of us take it lightly, but then it became a big issue, and now everyone wants a solution for how we can overcome it. Over to you, Shruti. Thank you, Ronak, for sharing this information. So, to overcome these issues, today we have with us someone who can treat the whole person, focusing on the mind and body connection. This is my honor, more than a pleasure, to welcome our guest speaker for today, Dr. Anjali Srivastava. She has done Master of Philosophy and PGDCP. She has been successfully practicing over 18 years as clinical psychologist and psychotherapist. She is a member of Rehabilitation Council of India, also a member of Indian Association of Clinical Psychologists. Last but not the least, she is the founder of Unalum Learning Center. So, ma'am, I request you to take over from here. Hello, all my dear friends. Very good evening to all of you. Thank you, Shruti. Is I'm audible to all of Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Audible. you? Good evening, ma'am. Hello? Yes, Hello? ma'am. I'm audible to all of you? Yes, ma'am. Thank you so much, Shruti. Thank you so much, Saraswati Engineering College team. My heartful thank you to Dr. Sunita, ma'am. Uh, Actually, she take a very good initiative to talk about this very current and sensitive topic, talk about the mental health, जिसको हम सब लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, हम बात नहीं करना चाहते. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन नॉट इवन फैमिली मेंबर्स, इन बिटवीन अ फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. तो थैंक यू सुनीता मैम एंड थैंक यू द एनएसएस टीम कि आपने इसको इनिशिएट किया और हम मुझे इस तरह से स्पीकर एज ए गेस्ट स्पीकर आपने इनवाइट किया. What I believe is a more than not in a, it's not a presentation. I don't believe in the presentation. It's a more than a discussion. So I believe on the discussion. Firstly, I'll just talk about something regarding mental health. How many of you know about the mental health? What is the mental health? Hope you all are aware. Okay. Yes, ma'am.
Yes, मेंटल हेल्थ, एक्चुअली जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो हमें से मैक्सिमम लोगों के मन में सिर्फ एक थॉट आता है कि मेंटल हेल्थ मीन्स कि द पर्सन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ही हैज सम bizarre behavior, he's talking in a very inappropriate manner, his clothing is very inappropriate, उसका जो कुछ चीजें है वो socially undesirable है. तो we have a certain thoughts and ideas regarding some mental illness. तो जब भी हमें बात करनी होती है मेंटल हेल्थ या वेलबींग की, तो मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें एक इमेज है एक दिमाग में या उनके माइंड में कि ये जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल इलनेस है वो सिर्फ इसी तरह की होती है और वो कुछ भी नहीं होता है. अभी जो इससे पहले पीपीटी में रौनक ने कुछ चीजें दिखाई थ्रू पीपीटीज की, हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड, उसके अलावा जो भी अभी डिप्रेशन क्या होता है, लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में. आपसे मैं एक सिंगल क्वेश्चन पूछूंगी, अगर हम में से किसी का अगर कहीं पर हमें रोड एक्सीडेंट होता है, अगर उस रोड एक्सीडेंट में हमें मेरे हैंड में इंजरी होती है, तो हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं. हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत दर्द होता है, फिर भी हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं. वो हमको एक सिटी स्कैन या एक एक्सरे एडवाइस करता है कि आप जाकर एक एक्सरे करा लीजिए. तो हम जब उस एक्सरे को कराते हैं तो हमारा फाइंड आउट डिडक्ट होता है कि आपका एक बोन फ्रैक्चर है, और उस फ्रैक्चर बोन में आपको प्लास्टर लगाना पड़ेगा. और उसके बाद वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें प्लास्टर लगाता है. दीज ऑल आर द वेरी पेनफुल प्रोसेस. हम वापस घर आते हैं उस फ्रैक्चर और प्लास्टर वाले हाथ के साथ में. लेकिन क्या हम में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हमने अपने उस इलनेस को या उस प्रॉब्लम को घर में छुपाया है, लोगों से डिस्कस नहीं किया है? वी फील ह्यूमिलेटेड, वी फील एम्बेरेस्ड. आई डोंट थिंक सो. हम लोग में से कितने ही लोग हैं जिनके फैमिली में शुगर पेशेंट होते हैं, थायराइड पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं, एंड वी टॉक इन अ वेरी ओपनली टू ईच अदर. यार हमारी फैमिली में तो एक बंदे को थायराइड हो गया है, अभी तो उसका शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है. लेकिन हम जब भी अपनी मेंटल वेलबींग या मेंटल इलनेस के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी होती है तो हम अवॉइड करते हैं. हमें एम्बेरस लगता है, हमें अशेमनेस आती है कि यार हम इस बारे में क्यों बात करें, लोग हमें जज करेंगे, वो हमारे बारे में सोचेंगे कि अरे इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो दिमाग इसका गड़बड़ हो चुका है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इससे बात नहीं करनी चाहिए. सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ या मेंटल अवेयरनेस को लेके वो है स्टिग्मा. स्टिग्मा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट इवन इन अ सिटीज और रूरल एरिया, अर्बन एरिया, इन एवरीवेयर. अगर हम मेट्रो सिटीज की भी बात करें तो वहां पर भी बहुत स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ और वेलबींग को लेकर के, नॉट इन अ स्मॉल सिटीज. तो स्टिग्मा सिर्फ इसलिए कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे, वो हमें एक टैग दे देंगे, वो मेरे ऊपर में एक नाम लगा देंगे. तो मेंटल इलनेस इज सेम लाइक अ फिजिकल इलनेस, इट कैन बी ट्रीटेबल लाइक अ फिजिकल इलनेस. तो सबसे पहले तो इस बात की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस एक जैसी है और इनका इलाज हो सकता है, और हमें उसके लिए एक अवेयरनेस स्प्रेड करना भी चाहिए लोगों में, सोसाइटी में. अब हम इलनेस होती कैसे है, जब हम मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये होता कैसे है, कैसे हो जाता है कुछ स्पेसिफिक लोगों को, कि ये कैसे आ जाती है उनकी फैमिली में या उनकी लाइफ में. तो इसके कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो एट्रीब्यूट करते हैं मेंटल इलनेस की तरफ में. सबसे जो पहला फैक्टर है वो बायोलॉजिकल फैक्टर हम लोग बोलते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके ब्रेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. ब्रेन केमिस्ट्री में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस हो सकती है. दूसरा आपका बायोलॉजिकल फैक्टर में आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी के फैमिली में कोई पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या फैमिली के किसी भी एक एक्स मेंबर में ये पेरेंटिंग से आ सकता है फैमिली में. दूसरा फैक्टर होता है हमारा सोशलाइजेशन या फैमिलीज इश्यूज. हमारी फैमिलीज में क्या क्या क्वार्डियल रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या क्या हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं चीजों, स्ट्रेस का लेवल हमारा कैसा है. तीसरा फैक्टर है हमारा एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज का कितना रोल है हमारी उसमें, वो भी हमारे मेंटल इलनेस को एट्रीब्यूट करता है. इन्वायरमेंटल और फैमिली जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के लिए. पेरेंट्स में रिलेशनशिप बहुत क्वार्डियल नहीं है, उनके बीच में फाइट्स होती हैं, डिवोर्स फैमिलीज हैं, सेपरेट है, सिंगल पेरेंट है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में अच्छे से नहीं इंटरेक्शन होता है. मैटरनल यानी कि मदर जो है वो घर के और बहुत सारे काम में या बहुत सारे और जगह उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो पूरा अटेंशन बच्चे पे नहीं दे पाती है. तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे उस लाइफ को हमारे एट्रीब्यूट करती है कि हम मेंटल इलनेस की तरफ में हमारा जाना हम जा सकते हैं. वी आर प्रोन टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस.
तो दीज आर द सम फैक्टर्स, सम रीजंस जिसपे हमें मेंटल इलनेस पे हमारा काम करना होगा हमें। दूसरा, हम अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के डेंजर साइन क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कि होता कैसे है ये इलनेस, कैसे हम अगर घर में फैमिली में या हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एज अ लेमैन। तो सबसे पहले जो हमें आइडेंटिफाई का सबसे मेजर और प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं कि नींद में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, या तो स्लीप एक्सेसिव होती है या तो बहुत कम हो जाती है। हमारी खाने की जो आदत है, हमें या तो बहुत भूख लगती है या तो हमारी एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है, सोशलाइजेशन बहुत कम हो जाता है, हमें आइसोलेट करने का रहने का मन करता है। किसी के आपकी जो हॉबीज है या जो आपकी पसंद की एक्टिविटीज है आप उसको करना अवॉइड करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं। आपका अटेंशन कंसंट्रेशन जाने लगता है, आप एक कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं कि मैं करूं या ये नहीं करूं, उसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, उस फोन को पिक करूं कि नहीं करूं। दीज ऑल आर स्मॉल अवॉइडेंस शुरू हो जाता है, फैमिली के साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, उनके साथ डिस्कशन नहीं करना। दीज आर सम स्मॉल आइडेंटिफाइंग साइन जो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी वजह से जो है पर्सन को हम एक मेंटल इलनेस की तरफ वो जा सकता है, उसको एक हेल्प की जरूरत है। स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो जजमेंटल वाला थॉट हटाना पड़ेगा कि अगर वो मुझे कुछ कह रहा है तो उसके मन में क्या, लेट्स स्पीक द, जो बोल रहा है उसे बात करने देंगे। अब हम आते हैं, जब जैसे मैंने बताया कि क्या क्या एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, डेंजर साइन क्या क्या है, क्या क्या चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटल हेल्थ को लेकर के। फिर अभी जैसे आपने बात करी सुसाइड की, या जैसे अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस की, सुसाइड है या स्ट्रेस, तो बहुत कॉमन वर्ड आपने देखा। हम अभी जैसे अभी कुछ करंट में कुछ सीन हुए हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ एक डिजीज में, डिप्रेशन इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, स्ट्रेस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, दे आर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। आप देखो कि हर एक दूसरा आदमी आपसे ये बोलता हुआ दिखेगा, या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें क्या स्ट्रेस के मीनिंग भी, हम स्ट्रेस को एक्चुअल समझ पाते हैं क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है हम समझ पाते हैं? किसी भी एक चीज के लिए किसी एक चीज को रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी नहीं है। डिप्रेशन एक तरह की मेंटल कंडीशन है, एक इलनेस की तरफ जाती है, जिसके कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, सामने वाले पर्सन को या सामने वाले व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। सिर्फ मन उदास हो जाना, मूड स्विंग्स होना, दीज ऑल आर द नॉट डिसऑर्डर, बीमारी नहीं है वो। आपकी एक स्वभाव हो सकता है, आपका एक व्यवहार हो सकता है जिसमें आपको काम करना चाहिए। अभी आप जैसे अभी हमने बात करी स्ट्रेस की, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें से आप कुछ पास आउट होके आपको कुछ को कैंपस सिलेक्शन में जाना होगा, कुछ लोग होंगे जो दूसरे कोर्सेज के लिए जाएंगे, कुछ और एक्टिविटीज करेंगे, तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है हमारा। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस जो आपको हेल्प करता है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में, और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, नीचे लेकर के जाता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको डिक्लेयर हो गया है कि आपके एग्जाम्स होंगे। अब उसमें से कुछ बच्चे जो है वो बहुत पैनिक कर रहे होंगे, कुछ बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि यार कैसे पढ़ाई करेंगे, इतना शॉर्ट टाइम है अभी तो, अब तो मैंने प्रिपरेशन भी छोड़ दी है, मैंने तो स्टडीज भी नहीं करी है, क्या होगा मेरे एग्जाम में। बहुत स्ट्रेस ले रहे होंगे, जिनको रात में नींद में प्रॉब्लम हो रही होगी, जिनकी एपेटाइट में प्रॉब्लम हो रही होगी, जिनको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, जो बात बात पे इरिटेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी बिल्कुल कट गए हैं लोगों साथ में कि बहुत एग्जाम है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मिलना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति इस कैटेगरी में जो आने वाले व्यक्ति है या जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो हम बोलते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, ये पैथोलॉजिकल या प्रॉब्लम वाला नेगेटिव स्ट्रेस है, जो आपकी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करेगा, आपको नीचे लेकर के जाएगा। अगर हमें सडनली पता चला कि हमारे एग्जाम्स हैं, तो अब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम क्या सॉल्यूशन पे फोकस करके इसको कैसे मैनेज कर सकते। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके बारे में जैसे ही सुना, उन्होंने अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाई, कितने चैप्टर्स है, कितना पढ़ना है, कितना कैसे कैसे खत्म करना है, सिलेबस को कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में ऑर्गेनाइज किया अपने पूरे सिलेबस को, और उसे
कट शॉर्ट करके उन्होंने एक पैटर्न बना लिया अपना पढ़ने का। तो जो ये नॉर्मल स्ट्रेस वाले स्टूडेंट करते हैं, जिनको स्ट्रेस लेवल बहुत नॉर्मल है और जिन्हें पता है कि हम अपने उस स्ट्रेस की वजह से अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, कि हमें तनाव हो रहा है तो हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसको और कैसे अच्छे से पढ़े, कितना क्वालिटी पढ़ाई करें। निगेटिव स्ट्रेस वाले उसी स्ट्रेस को ओवर थिंकिंग करेंगे और अपनी फिजिकली इलनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने मूड्स में स्विंग्स कर सकते हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो हाउ टू यू डील विद योर स्ट्रेस, सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ता है, या इसको समझना जरूरी है कि हम इस चीज को कैसे डील करें। मेंटल हेल्थ, अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ हमें समझ में आ गई क्यों हो जाती है, उसके रेड फ्लैग्स हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या हमें डेंजर साइंस है जिसको हमें समझना चाहिए कि ये अगर व्यक्ति आइसोलेटेड हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, उसका गुस्सा बढ़ा हुआ है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो रही है, उसका ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो उसको हेल्प की जरूरत है। उसके बाद अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा मेंटल वेलबींग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम करें क्या, नाउ व्हाट टू डू। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझना है कि अगर अपना मेंटल हेल्थ हमें ठीक रखना है तो सबसे पहले हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस मीन बी इन प्रेजेंट, हमें जो प्रेजेंट में है उसके साथ काम करना होगा। दूसरा, हमें जो अपने मेंटल वेलबींग को ठीक रखने के लिए हमें अपना ईटिंग पैटर्न ठीक रखना होगा, अपना स्लीप पैटर्न ठीक रखना होगा, हमें ग्रेटिट्यूड करना सीखना होगा, लोगों को हमें लोगों की हेल्प करना सीखना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना या बात करना, क्योंकि अभी तो हम अगर कोविड पीरियड्स को अवॉइड कर दें तो इंटरेक्शन सोशलाइजेशन पे फोकस करना होगा, लोग से ज्यादा मिले, बात करें, नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों से मिले, आप अपने फेस टाइम पे, फेसबुक पे, या जो भी आपका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं, लोगों के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, आप फिजिकली एक्टिव होइए उसके लिए। होप आप लोगों को जो भी चीजें समझ में आ रही है या आपकी कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है आपके या जो भी क्वेरीज है आपको लगता है रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग, जो भी आपके थॉट्स हैं। Thank you so much, ma'am, for giving such valuable information. Now, I would request Ronak to ask some questions. Yes, ma'am. On Actually, behalf ma'am, we had gathered some questions. These are some common questions which all of us were facing, and Okay. you have covered already 50% of that. Thank you for that, ma'am. Ma'am, what is the difference between sadness and depression? ओके रौनक, रौनक, सैडनेस इज अ इमोशन, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं ना, हैप्पीनेस, एंगर, लव, disgust, तो sadness it's a one of the emotion of the human being, but depression is a disorder, it's a illness। तो sadness जो है एक तो ये डिफरेंस है बहुत मेजर दोनों के बीच में। दूसरा जो डिफरेंस है, sadness बहुत टेम्परेरी, बहुत थोड़े समय के लिए होगा। लाइक जैसे आप अभी बाहर जाने को बोल रहे हो, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं रौनक कभी बाहर नहीं जाना है, तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलना है, देन यू फील सैड, यू फील बैड कि नहीं यार, नहीं मम्मा ने जाने नहीं दिया, मेरे को जाना था, लोगों से मिलना था, आपका मन उदास हो गया, आपको बुरा लगा। But for a time being only, again your mama is calling for tea or snacks or something else, जो आपने फिर वापस फैमिली के साथ बैठ के बात करना शुरू किया, खाना पीना शुरू किया, बैक टू नॉर्मल। बट इन केस ऑफ डिप्रेशन, आपको अगर सैडनेस है, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो आप बहुत लंबे समय तक एक मोड में ही रहते हो और आप उस मोड को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर पाते हो। होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको। Yes, ma'am. But ma'am, if someone is already sad and he doesn't overcome that emotion, so that can lead to depression. Yeah, we can say, but sadness is not one symptoms, Ronak. If the sadness is persisting for two regular weeks, like 15 days, अगर वो regular चलता है वो sadness, not only sadness, inappropriate diet pattern, inappropriate sleep pattern, lack of interest of activities, mood swings, low mood, crying, और some negative thoughts, these all are some basic things जिसमें हम बोलते हैं डिप्रेशन में जो तीन हम लोग ट्रायो बोलते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, ये जरूर होता ही होता है डिप्रेशन के केस में।
तो अगर वो बंदा बहुत लंबे समय तक सैडनेस में है तो जरूरी नहीं है कि वो सैडनेस सिर्फ डिप्रेशन में ही हो. मेनी ऑफ द अदर डिसऑर्डर इज देयर लाइक अ स्किजोफ्रेनिक पेशेंट, द बाइपोलर पेशेंट, या हो सकता है कि कोई बायोलॉजिकल या केमिकल डिप्रेशन उसको हो रहा हो. Yes, ma'am. हेलो Yes, रौनक. हाँ, ma'am. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Ma'am, is there any other ways that we can check our mental health? Yeah, it's a very good question. It's a definitely it's a very other ways like uh, in a day to day life, है ना. जैसे how could you know that कि your health is good? चलो मुझे बताओ पहले तो तुम अगर healthy हो तुम, how could you know that कि you are a healthy person? In I'm talking about the physically health, your physical health. For physical health, Hmm. if I'm feeling joyful every day, if I'm waking up at Okay. time, I'm not feeling any Hmm. weakness every day after doing all the Hmm. work, and I'm having a good Hmm. night's sleep. So I will Hmm. consider myself that If I'm you in good shape. hmm. Yes, ma'am. You said that कि if I am feeling physically fit then मेरे को body मेरा अच्छा दिखेगा, my glow on my face, my appetite is good, है ना. मेरे को लोगों के साथ बैठने उठने में मजा आएगा, Yes, ma'am. मेरे को वीकनेस नहीं महसूस होगी. फिजिकली हम फिट हैं ये दिखाने के लिए हमारा अपीयरेंस हमको दिखाता है ना. मेंटल Yes, इलनेस, ma'am. जब हम फिजिकल इलनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमें हमारे पास थर्मामीटर्स होते हैं जिसको हम अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीमीटर होता है, हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर सकते हैं. सेम एज मेंटल इलनेसेस में हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो कुछ साइकोलॉजिकली टूल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है, या एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, तो उस या आईक्यू है या पर्सनालिटीज है, तो उनके कुछ असाइनमेंट है या कुछ टेस्ट है हमारे पास में, कुछ टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं कि आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि इस व्यक्ति को इस लेवल पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में किस कैटेगरी में प्रॉब्लम हो रही है. और ये ऑथराइज्ड और लीगल टूल्स होते हैं. Ma'am, can you tell about the tools more? Like, any example? Like, Yeah, yeah, sure. Is a one of the very relevant tool is a Rorschach ink blot test. Rorschach ink blot test is a one of the very good diagnostic tool. Rorschach ink blot test अगर आप उसको पढ़ोगे इसके में तो it's a pack of 10 cards. इस हरमन रोशाक जो थे उन्होंने ही वाज अमेरिकन साइकेट्रिस्ट, ही इन्वेंटेड द रोशाक. तो उन्होंने इसे मोर देन 100 years we are practicing on the Rorschach. इट्स अनस्ट्रक्चर्ड इंक ब्लॉक डिजाइंस एंड उस कार्ड्स को दिखा करके हम पेशेंट्स को या जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन कार्ड्स को हम उन्हें दिखाते हैं वन बाय वन. और वो उस कार्ड को जो भी देख रहे होते हैं उनके माइंड में, क्योंकि जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो थॉट्स वो हमें बताते हैं कि मैम ये थॉट हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है. उन कार्ड्स के बेसिस पे हम उनका असेसमेंट करते हैं. उन कार्ड्स का पूरे इंटरप्रिटेशन होता है जिसके बेसिस पे हम उनके मूड्स के, उनकी पर्सनालिटी के, उनके थॉट्स के, उनकी इलनेसेस के बारे में आइडेंटिफाई कर पाते हैं एरियाज वाइज. उसी तरह से दूसरा डायग्नोस्टिक टूल्स हमारा टीएटी है, थ्रोमेटिक परसेप्शन टेस्ट. इट्स वन द अनदर गुड टूल जिसमें हम पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं, क्या दिमाग में ऐसे ट्रॉमाज है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा है, वो हम एक पिक्चर स्टोरीज के फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे आर्मी या एसएसबी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये टूल्स, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है और उनके ऊपर में आपको स्टोरी लिखनी होती है. ये कुछ टूल्स होते हैं. कुछ टूल्स हमारी पर्सनालिटी को डायरेक्टली असेस करते हैं, इसमें हम एमएमपीआई होता है, मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट है, कैटल्स का 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स है. उसी तरह से बहुत सारे हमारे आईक्यू टेस्ट हैं. आईक्यू टेस्ट में हमारा भाटिया बैटरी है, हमारा बीकेटी है और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है. तो इन टेस्ट की वजह से हम क्लाइंट्स के हर एक मूड को, हर एक कॉन्फ्लिक्ट को, हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो वो मुझे नहीं भी बताना चाह रहा है वो भी. thank you, ma'am. That was a lot of information. Very. This is the first time थैंक I've यू. ever heard of all of this. Thank you. ओके. हाँ. Uh, I would like Sunita ma'am if she has any questions. uh, Ma'am has talked about lot of about students mental health. What about the teachers who are dealing the same situation right now? हाँ, Thank you agree. so much I do agree with them. being handling two major parts, being a teacher, being a mother, being a homemaker, being a maid this time, being a cook. So how we can deal with this mental stigma which we are facing right now?
Ma'am, definitely your wordings are truly very sick. I'm associated. I'm literally, I feel the same feelings with me also. But ma'am, it's a really very much genuine. The teachers and the working women and working men, they are also and go through the lots of stresses and now these days in the COVID period. First of all, ma'am, you just in a 24 hours, you just try to find out 1 hour for yourself. It's a huge day now. It's a all day we can find out the 1 hour for me, 1 hour for you for do your enhance your some skills. You are focus on your hobbies. If you are liking to sing a song, you writing some poems, you love to painting, whatever. If you want to sleep and scrolling your mobile phone and watching the social media, then do whatever you want for 1 hour for yourself. Cut off for all the situation for your children, for your husband, your household work, your students, everything, and give 1 hour to yourself only 1 hour. And be active, ma'am. If you have a time to give a 5 or 15 minutes some physical activities like meditation or some walk or whatever in available in your place. I plan this every day, but it doesn't happen. Why then you talk to me separately, then definitely I'll try to give you some help. There is one common question that a student and like me, if I don't know about the psychiatry and all, how we can judge a simple tool having at home only ki I'm depressed or I'm sad or I'm being mentally ill. How I can identify that at very root cause level. At home it's Ma'am, ma'am, first of all, I'm not suggesting कि in only the mental health professional can do these type of testing, because अगर ये हम सब लोग इसको करने लगेंगे तो it's a very much common. Everybody say that the person is depressed. Because we are abusing this word actually now these days कि depression हो रहा है, depression हो रहा है, depression हो रहा है. But depression it's not like that. Depression means the brain में जो dopamine है वो dopamine का secretion कम हो गया है. The level of dopamine is decreasing now. आपका मूड खराब है, आपको बायोलॉजिकल हो रहा है, अंदर में ब्रेन में केमिकल का इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैम जैसे आपने बोला कि हाउ कुड वी आइडेंटिफाई, अगर आपके पास से मैम अगर 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट्स में आप देख रहे हो कि अगर उस स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जो आपको इनअप्रोप्रिएट दिख रही है, वो क्लास में वो आपको देख रहे हो असाइनमेंट कर रहे हैं, तो दीज आर सम रूट सिम्टम्स जो आप अपने क्लास में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो के साथ में कि हाँ नॉट ओनली डिप्रेशन मैम, क्योंकि जैसे आप जिस कॉलेज में हो उस तरह के जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं वहां पे सब्सटेंस एब्यूज के बहुत चांसेस होते हैं, एडिक्शन के बहुत चांसेस होते हैं मैम. डिप्रेशन से भी ज्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम है सब्सटेंस का, जिसमें हम बोलते हैं कि दे आर स्टार्टिंग सम कैनाबिस, यूजिंग कैनाबिस, सम वीड और सम काइंड ऑफ मैरिजुआना और व्हाटएवर, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है. बिकॉज अभी बच्चे घर से बाहर निकले हैं, एक नए एनवायरनमेंट में आए हैं, दे आर वेरी मच ट्राइंग टू यूज ऑल दीज थिंग, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को. तो आप उसमें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप देखो कि अभी एकदम से वो बच्चा जब शुरू में आया था तो बहुत टॉकेटिव था, अभी तो इंटरेक्शन करता था, अभी तो वो देख के अवॉइड करता है, वो ग्रीट नहीं करता, वो ग्रुप में बैठ नहीं रहा है, वो अलग थलग रह रहा है. या आपको उसके अपने ही बिहेवियर में नोटिस हो जाएगा कि हाँ ही हैज सम प्रॉब्लम. आप उससे बात करो, फिर आप उसको सजेस्ट करो कि या उसकी फैमिली से कॉल करके कि गो एंड विजिट एनी ऑफ योर नियर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. आप इमीडिएट उसको बोलिए कि विजिट कराइए उसको, जो भी उसके नियर बाय अवेलेबल हो. क्योंकि मैम सबसे बड़ा स्टिग्मा तो यही है कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना नहीं चाहते हैं. Although, see, our college has a very good system. Saraswati College of Engineering has made one, very good initiative that they have divided student in 20 groups, and then they have a mentor, or you can say counselor, who can suggest them everything if they are facing some problem. But the thing is, the student doesn't come with their problems. This is the major, roadblock. Ki if a teacher want to suggest something or guide something, they doesn't know what is going around their mind, because they feel कि friends are the best to whom they can talk, and they doesn't share anything with the teachers, even with the parents also. I have heard this, because many parents, they come to meet us and they say कि no, हमारा बच्चा तो हमसे बात ही नहीं करता है, मैडम आप देखिए बात करके अगर आपके कुछ बच्चा है, पहले तो 10th में 12th में इतना अच्छा परसेंटेज था, अभी आके उसके मार्क्स ऐसे कम क्यों हो गए. तो जो पेरेंट्स का फोकस है ना, वो मार्क्स पे ज्यादा चला जाता है, इंस्टेड ऑफ उनको लगता है कि बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम है. तो वो जो
आप पेरेंट्स के लिए भी कुछ बताएंगे कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं तो बच्चों को इस मेंटल और ये डिसऑर्डर से बाहर निकालने के लिए? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया है। सबसे पहला तो जो मैम आपने बोला मुझे कि कुछ बच्चे हैं जो आना नहीं चाहते हैं, दे डोंट हैव एनी इनसाइट, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वो अपने पीयर ग्रुप से भी डिस्कस कर रहे हैं तो उनके थ्रू हमें ग्रुप में मैसेज सेंड करना चाहिए, ग्रुप मीटिंग्स करनी चाहिए। हमें उस तरह के बच्चों को इनडायरेक्ट मैसेज ज्यादा देना चाहिए rather than the giving the direct message। आप एक ग्रुप में प्ले करा सकते हो उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज आप उन्हें बोल सकते हो कि 1 by 1 स्टेज पे बोलना है अपने फीलिंग्स को। तो इनडायरेक्टली आप उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो, या आप उनको डायरेक्टली नहीं करके आप इनडायरेक्टली उनको क्वेश्चन कर सकते हो चीजों के साथ में ग्रुप में बैठ करके। सेकेंडली आपने मैम पूछा कि पेरेंट्स का, डेफिनेटली मैम मैंने आपसे बोला भी कि बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का बच्चे की मेंटल हेल्थ और वेलबींग में। जिस पेरेंट्स का, जो कुछ पेरेंट्स हैं उनका मेन मोटिव ही यही है कि नंबर या स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, नंबर कैसे आ रहे हैं, नंबर के बेसिस पे ही उनके हिसाब से है कि हाँ बच्चा परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो ही इज गुड, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट गुड। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैम यहाँ पर कि मेरा अभी लास्ट में अभी 2 वीक्स पहले मैंने एक केस देखा। द चाइल्ड वाज इन क्लास 12th और 10th के बोर्ड में उसके 98% मार्क्स आए थे। और मैम वो एडमिट हुआ था एब्डोमेन पेन के लिए, और किसी भी उसके टेस्टिंग में कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि व्हाट प्रॉब्लम ही इज गोइंग थ्रू। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे कॉल किया कि शायद कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो मैम को बुलाते हैं। तो बस पेरेंट्स आर वेरी एडमेंट एंड वेरी एग्रेसिव कि मेरा बच्चा तो 98% स्कोरर है, उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, मेंटल इश्यूज है, इसको मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को। बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उनको कन्विंस किया बुलाया तो बच्चा एक तरह की मेंटल इलनेस से गुजर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ की ये सोच है कि हमारे बच्चे का एकेडमिक अच्छा है, आईक्यू अच्छा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। क्या फिजिकल इलनेस नहीं हो सकती अगर जिस तरह से मेंटल इलनेस हो सकती है? तो पेरेंट्स का रोल, आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स का प्रेशर इनडायरेक्टली बहुत रहता है, तो यहाँ पर आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि हर एक बच्चा अलग है एक दूसरे से, तो कंपेयर नहीं करिए दो बच्चों को। परसेंटेज बहुत ज्यादा एक टाइम के बाद मैटर नहीं करते। जब आप जॉब में जाते हो, अपने आप एक सिलेक्शन हो जाता है, तो आपसे कोई नहीं पूछता है कि आप कितने परसेंट स्कोरर थे। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स बोलती है। तो पेरेंट्स को, जहां पर आपको लगता है, आप पेरेंट्स को एक ग्रुप में बुला करके जरूर उनको ये बताइए कि बच्चे में बहुत सारे और स्किल्स हैं, बच्चे में और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आप उनके ऊपर फोकस करिए, ना कि उनके निगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप निगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करोगे बच्चा उतना अवॉइडेंट होगा, उतना ज्यादा पेरेंट्स को इग्नोर करेगा, उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद सडनली उसके ग्रेड्स डाउन हुए हैं, तो मैम ये भी इश्यू है कि थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कि सडनली ऐसा क्या उसकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रेड डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह के केसेस में। और मैम ज्यादातर क्या देखा गया है कि जब हम जैसे मोस्टली इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे बच्चे बहुत ही टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ते हैं, तो आई नो कि दे हैव द जी। पीयर प्रेशर आल्सो, दे हैव टू बेस्ट अमंग ऑल दोज हु हैव जॉइंड, उनको रैंक भी लाना होता है एंड दे गेट प्लेस विद इन 4th ईयर, तो दे हैव दैट प्रेशर आल्सो। बट व्हाट यू वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि खाली एकेडमिक ही सब कुछ होता है क्या लाइफ में? ये भी बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि हमें यहाँ पर इसीलिए शायद अभी इंजीनियरिंग कॉलेज या जैसे आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एनएसएस पे काम करा रहे हो बच्चों के साथ में, इट्स रियली वेरी गुड इनिशिएटिव कि बच्चों को दिखा रहे हो कि सोशल वर्क एनएसएस से क्या कराता है, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल वर्क, कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमारे अंदर में वो इमोशन है, वो फीलिंग है, हम जो और कुछ भी कर सकते हैं बियॉन्ड योर स्टडी, इट्स लॉट ऑफ वर्क इज देयर, लॉट्स ऑफ करियर इज देयर। अगर हमने इंजीनियरिंग की करी है सिर्फ और उसके बाद भी हम सोचे कि हम अपने में क्वालिफाई नहीं, तो हमें यहाँ पर आपके कॉलेज में आप एक कैरियर काउंसलर की मीट करा सकते हो ग्रुप में बच्चों को बैठा करके, कि जब अभी हम लोग के 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो सिर्फ नंबर ऑफ कैरियर्स होते थे कि 100-200 कोर्सेज हैं जिसको आपको अप्लाई करना है और आपको ज्वाइन करना है। बट नाउ दिस इज मोर देन 5,000 10,000 कैरियर इज देयर। तो सिर्फ एक कैरियर में अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे डजंट मीन की लाइफ इज ओवर, है ना। तो हमें अपनी स्किल्स को और फाइंड आउट करना है, हमें और ढूंढना है कि हम क्या क्या चीजें और भी हमारे अंदर में है जो हम उसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर शायद आप लोगों की एक्टिविटीज होती होंगी कि हम उसमें एक उनकी अपनी स्किल्स होती है, कुछ बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा करता है, कुछ में डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, कुछ प्रेजेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई करेंगे बट उनको हमेशा दीजिए कि एक सेकंड ग्राउंड पे एक स्टेप जरूर रखें अपनी लाइफ में। जैसे एक हमारे यहाँ एक प्रोवर्ब है ना, एक कहावत है कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटकना चाहिए।
तो ऑलवेज पुट सम खजूर का पेड़, एक खजूर का पेड़ हमेशा बना के रखना चाहिए कि जब भी हमारे ड्रीम्स हो, हम उसको हाई जा रहे हैं लेकिन अगर वो अचीव नहीं हो रहा है तो आई हैव सम अदर ऑप्शन, अल्टरनेटिव इज देयर। तो वो नहीं लगे कि जो मेरा, क्योंकि बच्चे मैम जैसे आपने बोला कि बच्चों में सबसे बड़ा रीजन है मैम कि बच्चे अनरियलिस्टिक गोल बना रहे हैं। बच्चों में रियलिस्टिक गोल नहीं है। आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, लेकिन हम उस पोटेंशियल के बियॉन्ड जा करके अपना एक ड्रीम सेट कर रहे हैं, और उस ड्रीम जो कि हमें पता है कि वो अचीवेबल नहीं है मेरे पोटेंशियल के हिसाब से, तभी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो रहा है हमारा। तो एक रियलिस्टिक गोल बनाना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ कि एक अपना अल्टरनेटिव गोल बनाना बहुत जरूरी है कि जिसपे आपको लगे कि हाँ वो अचीव नहीं किया तो डेफिनेटली मैंने कुछ और तो किया साथ में। Yes, ma'am. There is a question in the chat box. Ma'am, depression कितने टाइम तक रहता है? What is the duration of depression? डिप्रेशन कितने टाइम तक रहता है, ये हम कह नहीं सकते, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है। अगर ये फर्स्ट एपिसोड है डिप्रेशन का, किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट एपिसोड है, और वो डिप्रेशन टू टाइप के होते हैं डिप्रेशन। पहला क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जैसा मैंने बोला ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल, जो हमारे केमिकल्स हैं ब्रेन में, वो डिक्रीज होने लगते हैं। अगर केमिकल डिप्रेशन है तो उसका एक अलग टाइम है। और अगर रिएक्टिव डिप्रेशन है, जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन ब्रेकअप हो गया, घर में कोई एक किसी को, फैमिली में हमने किसी को लॉस कर दिया, कोई ग्रीफ हो गया, कुछ दुख ऐसा आ गया हमारी लाइफ में, या कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया, कोई सेटबैक हो गया, अगर उसकी वजह से डिप्रेशन है तो उसका एक टाइम अलग सेट होता है। तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी उसकी उतनी कोपिंग स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि डिप्रेशन में भी चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो साइकोथेरेपीज हो, वो आपकी कोपिंग स्किल्स को इनहेंस करते हैं कि हाउ टू यू डील विद द योर करंट लाइफ सिचुएशन। तो वो जितनी अच्छी उसकी स्ट्रेटेजीज होंगी, जितनी जल्दी वो कोप कर पाएगा, डेफिनेटली वो उतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कि हाँ ये बंदा जो है 15 दिन में ठीक हो जाएगा, या 2 महीने में ठीक हो जाएगा, या 6 महीने में। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हाउ टू द पर्सन टेक देयर डिजीज एज सीरियस, और उस पर कितना वो काम कर रहा है। सपोज आई फाइंड कि हाँ, सपोज मैं ही हूँ या कोई मेरे जानने वाला ऐसा है जो मुझे लगता है कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गया, मतलब ही हैज हैविंग सम मेंटल डिसऑर्डर्स, तो उसमें डूज और डोंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स? डूज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता चले उस हाउ टू डील विद दैट पर्सन। मतलब फैमिली या केयर गिवर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आप फैमिली पर्सन ऐसे के लिए नॉर्मल, बात कर रहे जैसे होंगे। वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, वो मेरा स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मैं खुद भी हो सकती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसमें क्या डूज रहते हैं और क्या डोंट्स रहते हैं? ओके, डूज में सबसे पहले तो है मैम कि जब हमें लगे कि हमें या मेरा कोई जानने वाला, मेरा कोई ऐसा पर्सन जो कि इस तरह की मेंटल इलनेस की तरफ, उसको अकेले नहीं छोड़ना जरूरी है ना। और उसके साथ साथ उसके बात करना बहुत जरूरी है, उसके इमोशंस को सुनना बहुत जरूरी है पेशेंटली, बिना किसी बात को उसको जज किए हुए, बिना प्री ऑक्यूपाइड अपने माइंड में थॉट रखे हुए। सलाह नहीं देनी है उस टाइम में कुछ भी, उसको सिर्फ सुनना है। उस टाइम उसको एक सुनने वाला चाहिए, उस समय सुनना है। फिर उसकी केयर करनी है, उसकी उसके फैमिली को बताना है कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करनी है, उसकी ईटिंग पैटर्न में चेंज करने की कोशिश करनी है। जैसे कुछ हैप्पी फ्रूट्स होते हैं, हम लोग बताते हैं कि कुछ विटामिन जिंक है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, जिन फ्रूट्स में या कुछ नट्स में होता है, हमें वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। These all are some leafy vegetables like spinach or something else। और उसके अलावा हम बनाना को बोलते हैं, कुछ स्वीट्स हैं जो हमारे मूड को बूस्ट अप करती है। उसको एक्टिव रखना चाहिए कि वो जितना एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करते रहे चीजों के साथ में। डूज है मैम ये सारे। और जब हमें लगे कि उसको अकेले नहीं जाना है कहीं पर भी, उसको कि उसके अंदर में पहले से ही निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो उसको आइसोलेटेड या अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा, उसके आसपास में अगर हमें लग रहा है कि नेगेटिव थॉट में सेल्फ हार्म बिहेवियर बहुत ज्यादा है, या वो अपने आप को नुकसान भी कर सकता है, तो हम अपने शार्प ऑब्जेक्ट या जो भी हमें लगता है घर में वो अपने हार्म कर सकता है, उन सब चीजों को हमें हटाना होगा। फैमिली और उनके केयर गिवर्स को बताना पड़ेगा कि ये जो अभी व्यक्ति है, इसको एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जरूरत है सबसे ज्यादा बेसिकली। Hello, ma'am. Yes, ma'am. There is a question in the chat box. Ma'am, is there any exercise to reduce our depression?
डेफिनेटली मैनी ऑफ द एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डिप्रेशन को आप क्या, डिप्रेशन अगर मैंने जैसे बताया कि डिप्रेशन ही नहीं, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम करती है उसमें। हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, इट्स अ फुल्ली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसे हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, आपसे मैंने पहले बोला कि अगर हमें ठीक रहना है तो हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भी बंदा डिप्रेशन में है, आप उसको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करा सकते हो। द बेसिक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बहुत इनिशियली और 5 स्टेप्स है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो। हम सबके पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो हम अपने सेंस ऑर्गन पे फोकस करेंगे। लाइक ट्राई टू बी वॉच थ्रू योर आईज। अपने आसपास की 5 चीजों को देखना शुरू करो। अगर 5 चीजें भी नहीं देख सकते तो बस अपने ही बॉडी में, जैसे अभी श्रुति ने पिंक कलर का टॉप पहना है, तो श्रुति विजुलाइज हर टॉप, देन विजुलाइज हर स्पेक्स, द फोकस ऑन द हेयर्स एंड द फोकस ऑन द कर्टन्स एंड सराउंडिंग इट। ये हर एक चीज को विजुलाइज करना है थ्रू योर आईज, एटलीस्ट 5 थिंग्स को। उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन ईयर, हमारे कान से। हमें आसपास के सराउंडिंग से जितने साउंड्स है, कोशिश करना 3 या 4 साउंड्स को पिक कर लेना है। उन 4 साउंड्स पे फोकस करना, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न हो सकता है, मोबाइल की रिंग हो सकती है, किसी की बातचीत हो सकती है, कोई घर में बर्तन की आवाज हो सकती है, कोई भी चीज। तो ये फोकस ऑन द साउंड्स की, पंखे की आवाज हो सकती है, एसी की आवाज हो सकती है, तो वो साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। देन थर्ड इज आवर नोज, जो हम स्मेल करते हैं। हमें कोई भी आसपास की, हमारा परफ्यूम हो सकता है, हमारा सोप हो सकता है, किचन में है तो कोई स्पाइसेस या कोई ऑयल हो सकता है, बाहर है तो कोई किसी का कोई फ्लावर या कोई लीव्स हो सकती है, या कुछ भी हमारा ऐसी जो 3 चीजों पे हमें स्मेल करना है। उसी तरह से फिर आता है हमारा टच। हमारे हाथ के थ्रू हमें, जहां बैठे हैं हम अपने उस सरफेस को टच करेंगे, तो वो सरफेस हार्ड है, सॉफ्ट है, टच के थ्रू हम 2 तरह की चीजों को टच कर सकते हैं। हार्ड है, सॉफ्ट टेक्सचर है, टच करना है, उसे फील करना है मन में। लास्ट आता है हमारा टंग, जिसको हमें टेस्ट करना है। तो जो भी आसपास में कोई स्पाइस मीठा रखा है तो उसको हम टंग के बिल्कुल टिप पे रखेंगे एंड देन फील दैट टेस्ट। ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी है, ये माइंडफुलनेस टेक्निक भी है, और ये वन ऑफ द थिंग जिसको हम अपने आप को अप्लाई करके खुश कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए, जैसे आपने बोला, डिप्रेशन के लिए एक जैकबसन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होता है। इट्स वन ऑफ द वेरी लॉन्ग रिलैक्सेशन टेक्निक, इट्स टेक 45 मिनट्स, जो हम एक कंप्लीट एक रिलैक्सेशन कराते हैं, जिसके थ्रू आपका माइंड, आपको एक पॉजिटिव और एक हेल्दी थॉट के थ्रू आप आ सकते हो। Is there anything, what are your suggestions for like controlling anger, anxiety? Like do you have any suggestions like how we can control anger, anxiety? Yeah, it's a very relevant question. I think so कि डिप्रेशन हम लोगों ने इतना सुन लिया है मीडिया के थ्रू या आजकल के सिनेरियो में, तो एवरीबॉडी हैज द माइंड कि ना इनडायरेक्टली इज अ फिक्स इन आवर माइंड कि डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, बट बियॉन्ड द डिप्रेशन इट्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेसेस इन अ लाइफ। जैसे अभी आपने पूछा एंजाइटी, डेफिनेटली एंजाइटी इज एंगर, इज द वेरी इनिशियल टॉपिक। एंगर के लिए हमें इस काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों में हमें अपने कुछ इमोशन, एंगर इज वन ऑफ द इमोशन जस्ट लाइक सैडनेस, like love, like disgust. Same, anger is an emotion. So anger is not a problem. What is problem? How do we react with the anger? How do you react with your anger? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो गुस्सा आना तो नॉर्मल है ना, हम सबको गुस्सा आ सकता है, लेकिन हम उस गुस्से को कैसे निकाल रहे हैं, निकालने के तरीके में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें अपने एंगर पे काम करने की जरूरत है। तो उस तरीके में अगर सबसे पहले हमारा जो एक टेक्निक से हम लोग यूज करते हैं, तो 3 या 4 टेक्निक्स में अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली टेक्निक्स है कि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना है, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए आपको मन में रखना है कि अभी तो जवाब नहीं देना है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट है इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। सेकंड रिएक्शन, हमें वो जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन में मैं हूं, मुझे वो सिचुएशन छोड़ देनी है। अगर मैं बेडरूम में हूं तो मुझे बेडरूम से निकल करके लॉबी एरिया में आ जाना है। अगर मैं मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे वो जगह छोड़ के कहीं और आ जाना है। सिचुएशन चेंज कर देनी है अपनी, जहां पर मैं हूँ सिचुएशन को चेंज कर देना है। सेकंड, जैसे हम लोग आप देखते भी हैं, बहुत से लोग बात भी करते हैं कि एक बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं फॉर द 20 मिनट्स, 20 काउंट्स, 20, 19, 18, 17, नॉट इन दैट मच फास्ट, इज अ स्मॉल काउंटिंग 18। और अपने माइंड में एक थॉट, एक बोलते हैं ना कि रिकॉर्डर की तरह से माइंड में एक थॉट डाल लेंगे। बाय एवरी काउंटिंग आई एम गोइंग टू बी काम एंड कंपोज, बाय एवरी काउंटिंग आई एम गोइंग टू बी काम एंड कंपोज।
जब हमें लगेगा कि हम काम एंड कंपोज हो गए, तो लास्ट पॉइंट है कि फिर अपने आप को एक मैसेज देना है, अपने आप से पूछना है क्या मेरा गुस्से से मेरे को क्या यहाँ पर अभी मैं रिएक्शन करूंगा तो मेरा क्या क्या फायदा होने वाला है, मैं क्या क्या फायदा हो सकता है, और अच्छा मैं यहाँ पे भी तुरंत गुस्सा करूंगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये अगर 5 पॉइंट हर एक एंगर वाला व्यक्ति फॉलो करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो अपने एंगर के लेवल को रिड्यूस कर सकता है। एंजाइटी में भी होप आई एम गिविंग अ क्लियर आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ आई एम कमिंग टू द एंजाइटी, है ना। एंजाइटी जब लोगों को होती है, एंजाइटी में बेसिकली जो फीचर्स होते हैं या एंजाइटी में जब लोगों को दिक्कतें आती है तो मेन होता है कि उनके मस्कुलर रिलैक्सेशन नहीं होता, मसल्स बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं। आप देखो जब एंजाइटी बढ़ती है तो पैरों में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, या एक अजीब सा तनाव महसूस होता है हमें अपने बॉडी में। तो हमें मसल्स को टाइटन एंड रिलैक्स करना होता है एंजाइटी के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी किसी को बहुत एंजाइटी हो रही हो, लगे हार्ट बीट बढ़ रही है, हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो सिट इन अ वन प्लेस, जहां पर है वहां से बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, सीधा बैठ जाएंगे शोल्डर अप करके। उसके बाद में हमें डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीदिंग का पैटर्न है कि हमें अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को बाहर फुलाना है, जैसे हम बलून फुलाते हैं ना पेट में, पेट को फुलाना है, 10 काउंट्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन अपने उस ब्रीथ को जो हमने होल्ड किया था उसको रिलीज कर देना है। वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द एंजाइटी पेशेंट्स, जिनको एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट को फुलाना है, 10 काउंट करना है और सांस को छोड़ देना है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप सोते समय भी कर सकते हो, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, जिस कंडीशन में आप चाहो उसको कर सकते हैं। हेलो मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने दोस्त के सिचुएशन को सुन रहा हूँ, तो जब दोस्त हमें उसकी सिचुएशन बताता है ना, तो हम उसके ऊपर उसको सजेशंस देते हैं, लेकिन अगर वही सिमिलर सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है ना, तो वो हम कैच नहीं कर पाते, या फिर उस वक्त हम लोग रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों हो सकता है, मतलब उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो हिपोक्रेसी बोलते हैं नहीं, एज अ फन एक्चुअली यही होता है, हम सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जब हमें सजेशंस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी इलनेसेस या जो भी चीजें पे हम डिस्कस करें तो हमें सिंपैथी नहीं करनी है, हमें एम्पैथाइज होना है। सिंपैथी सहानुभूति नहीं करनी है, अहानुभूति करनी है, महसूस करना है। तो जब भी आप दोस्त को सजेशन देते हो तो आप एक पार्ट ऑफ सिंपैथी रखते हो उसके साथ में, और आप उसको कुछ भी सजेशन देते हो। लेकिन जब हम एम्पैथी रखते हैं तो हम अपने दोस्त की सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं कि यार इस सिचुएशन में मैं हूं तो मैं भी कैसा रिएक्ट करूंगा, देन यू गिव द सजेशन। तो शायद वो चेंजेस जो आप कह रहे हो आ जाते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे जब आप सिंपैथाइज होगे नहीं और एम्पैथी दिखाओगे। सिंपैथी नहीं दिखानी, एम्पैथी के साथ जब सजेशन दोगे, देन यू रियलाइज कि यार मेरे थॉट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आपको अपने आप को सिचुएशन में रख के सलाह देनी है उसको कि आप उस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे। मैम हेलो मैम। Hello, हाँ ma'am. जी, हाय। Ma'am, I would like to ask that, ma'am, in these times when we are stuck in home, how do we keep ourselves motivated to continue doing our work? Like after some point, we feel like, नहीं यार हमें कुछ नहीं करना है. We've just to sit over there and do nothing. So how to keep ourselves motivated and stop procrastinating our main works that we ought to do? It's one of the very major problem nowadays days we are facing. Procrastination is the one of the first step. हम लोग बोलते हैं ना, is the one of the very initial step we go through is the way of your mental health को जो हम गड़बड़ कर सकते हैं। प्रोकास्टिनेशन जो करते हैं लोग, उसके लिए बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो या उसे अपने मन में रख सकते हो कि हाउ टू वी डील विद द प्रोकास्टिनेशन। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि मोटिवेट नहीं होते हैं, तो अपने आप मोटिवेट रखने के लिए डेली सबसे पहले तो अपनी एक टू डू की लिस्ट बनाइए, एक डायरी रखेंगे छोटी सी, और सुबह उठने के साथ में अपनी एक लिस्ट बनाइए कि मुझे पूरे दिन भर में 3 ऐसे काम करने हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। कोई भी वो 3 काम हो सकते हैं मेरे को, चाहे वो मेरी स्टडी से रिलेटेड, हाउस हेल्प मम्मा के या घर के हाउस हेल्प से रिलेटेड, या मेरी किसी से बात करने से, कोई भी ऐसे कोई 3 काम की लिस्ट बनाएंगे और मैक्सिमम एक सुबह उठते ही उस बना लेंगे। उसको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे में कि मुझे उसको कैसे करना है।
उन स्टेप्स को हम कैसे कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। फिर हम अपनी एक टाइम शेड्यूल देंगे, अपना एक टाइम लाइन बनाएंगे कि अगर मैंने दिया है कि मुझे ये करना है, जैसे अभी और अपने एक डेडलाइन अपनी सेट करेंगे। होता क्या है ना कि जैसे आपको पता तो है कि क्या करना क्या है, पता होता है ना सबको कि क्या करना, अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, अभी जॉब करनी है, पता है ना सबको। उसमें से कुछ अभी ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो यूपीएससी का एग्जाम देना है, बोला है ना, यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे एमबीए करना है, इसके बाद में मुझे कैट क्लियर करना है। देखो क्या व्हाट तो हम सब डिसाइड कर लेते हैं, हम में से मैक्सिमम जो है वो व्हाट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन व्हेन कितने लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। जब हम व्हेन डिसाइड करेंगे, व्हेन मींस कि हमने अपने आप को डेडलाइन दिया है। एग्जाम्स हॉल में क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर लिख रहे होते हो और टीचर्स बोलती है ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, तो हाथ की स्पीड कैसी होती है, लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। जब टीचर बोलती है ओनली 10 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट, और वो कॉपी छीनने के लिए आ रही होती तब और स्पीड बढ़ती है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन राइटिंग और एनीथिंग एल्स, वी आर जस्ट राइट एंड कंप्लीटिंग आवर डेडलाइन, कि हमें बस कंप्लीट करना है ये आंसर। जब हमको डेडलाइन होती है, प्रोकास्टिनेशन उन लोगों में ज्यादा होता है जो अपने आप को डेडलाइन नहीं देते कि हमें कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन हमने अपने आप को डेडलाइन, हमने करना है तो कर देंगे, कर देंगे नहीं, हमें कब करना है, किस डेट में करना है, तो हमें अपने आप को डेडलाइन देनी होगी। अभी जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, फिर आपने बोला कि मुझे आज मैथ्स और अपना कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करना है, आज मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है, ये बोलेंगे कि मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है, हमें अपने मैथ्स का ये नंबर 1 चैप्टर का इतना एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। मैथ्स के 4th चैप्टर का नंबर 4th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट करनी, बस इतना बोलना है, मैथ्स कंप्लीट करना है, नहीं बोलना है। तो यहाँ पर हम बहुत स्पेसिफिकली अपने आप को एक स्लॉट दे रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं चीजों के साथ में, चीजों को ब्रेक थ्रू करना है। आप ये बताओ कि आप एक, हम लोग बोलते हैं ना कि कैन यू ईट फुल एलिफेंट, एक पूरा हाथी एक साथ खा सकते हैं, नहीं खा सकते, पूरा एक बकरा एक साथ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको पीसेस में करते हैं ना, देन हम स्मॉल स्मॉल बाइट्स को खाते हैं, देन वी एंजॉय ईच एंड एवरी बाइट। तो जब भी हमारे पास सिलेबस ज्यादा हो या पढ़ने का चीज ज्यादा हो या हमारे पास कोई चीज ज्यादा अमाउंट में है, तो हमें उसे पार्ट कर देना है, सेक्शंस कर देने हैं स्मॉल अमाउंट्स में, एज पर योर कन्वीनियंट एंड एज पर योर पोटेंशियल और एज पर योर चॉइस। उसको छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दीजिए और कोशिश करिए जो हार्डेस्ट है, जिसको आपको जो टफ लगता है, यू स्टार्ट विद दिस। ये नहीं कि सबसे इजी हार्डेस्ट वाला छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया तो वो छूटता चला जाएगा आपका। और अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन करने के लिए। और हम लोग बोलते हैं कि अगर हमने किसी अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया चीजों के साथ में, तो डिसिप्लिन और आपका जो एक ड्रीम है, जो हम कहते हैं ना हम कोई चीज कर सकते हैं कैसे, तो वो आपके आपके माइंड में एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं। दिन भर में आपकी एनर्जी, आपका आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आपका एक फ्यूल है, आपके अंदर में एनर्जी लेवल हाई कर रहा है ना। तो उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करना है और ऑर्गेनाइज्ड होना है और अपने आप को टू डू लिस्ट बनानी है और ये सोचना है कि, और अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है। लोग बहुत से लोग गिल्टी फील करते हैं, इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग माय टास्क आई फील गिल्टी, आई फील बैड, बस वहीं पे खत्म हो गया सीन। तो यहाँ पर rather than the giving the punishment, you give incentive to yourself कि अगर मैंने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया या फलाना फलाना कोर्स का मैंने एरिया कंप्लीट किया, तो आज मैं आयाली यार ना वेब सीरीज का एक सीरीज देखूंगा या अपना ये वाला गेम खेलूंगा आज, लेकिन मैं पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लूं, या मैं अपने आप को एक बढ़िया सा खाना खिलाऊंगा आज अपना बना करके। तो जो भी एक इंसेंटिव, जो आपको छोटे छोटे से इंसेंटिव हो सकते हैं आपके जो घर में आपके आसपास में, आप उसको अपने आप को दे सकते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मॉर्निंग से ही, अब जैसे अभी आपने बोला कि उठते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो आप मॉर्निंग से ही शुरू करिए, अपना बेड बनाना शुरू करिए, अपना बेड से शुरू करिए, आप तुरंत उठना बेड ठीक करिए, अपने आप को ब्रशिंग करिए इमीडिएट, थोड़ा सा 5-10 मिनट की जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम अवेलेबल है, थोड़ा सा वर्कआउट करिए उसके साथ में। दिन की शुरुआत बेड पे बैठे बैठे नहीं करनी है, थॉट के साथ नहीं करनी, एक्शन के साथ करनी है अपने। Yes, ma'am. Thank you. Can you please on? As we are at the end of the session, on behalf of everyone present here today, I would like to thank Dr. Anjali ma'am for taking the time from her busy schedule to speak to us. Your insight in mental health and how it is impacting the life of so many was both informative and helpful. Thank you for sharing us those simple steps we can all put into practice in our lives, like the exercises and how to maintain an anger, to think it over, the to-do list. Thank you for that. Lastly, I would like to thank our PO, Sunita ma'am, for the great initiative she
she took to conduct this event. Thank you, ma'am. And thank you for all dear participants who have participated in this event and made this event a wonderful and memorable day. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Before And we take care end, of all your let me say a few words. After that, we will end. First of all, I thank our principal, Dr. Manjusha Madam. She always, she always initiate, to do such type of programs. She always, welcomes such type of programs. Our all the deans, our HODs, other faculty members, my dear students, who always there to, do everything for this unit, especially this NSS. Anjali madam, thank you very much Thank you so for much. giving such a wonderful insight. And just last May, I would like to say that life is very precious. Yes. You are world to your loving ones, and what we all matter, maybe less than or lot, but always more than one, none. So with this, I say ki follow what ma'am has suggested us, and if you have any query, then I have number, ma'am ka number hai mere paas. Put that query to me and I'll send to her, and she will definitely give you some solutions. And thank you very much, Definitely. all of you. Definitely. Please, let's talk. हम बात करते हैं. ये ध्यान रखना कि बात करना है. बात करने से चीजें खत्म होंगी. Let's talk. है ना? Yes, ma'am. Take care of all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Everybody patient and forming so much, very much questions which is needed now. So thank you very much, Anjali ji. Thank you, होप ma'am. कि हम Thank you आपके so साथ much. कोई और सेशन करें जिसमें आप हमें पूरा एक मेथड बताएं. बिल्कुल मैम. कभी एक स्पेसिफिक किसी बिल्कुल बिल्कुल मैम. एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स. बिल्कुल किसी को भी बिल्कुल मैम प्रॉब्लम्स है तो आई एम देयर. मोस्ट वेलकम. Thank you, students. So with this, we are winding up the session. Have a good evening to everybody. Thank you, ma'am. 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 टीचर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे भी बात करिए. We are there for you every time. डांटते जरूर है क्लास में, लेकिन we really want to talk to you. जब भी कोई बच्चा बात करता है, we feel happy. Signing off.